चिल गया आपने, क्यों जीत रहे हो? ये तो अच्छी बात है ना, आप जीतने में शॉर्ट लेकिन क्या है तो मुझे भी पता चलेगा। ए भाई थोड़ा सा फिंगर को हिंदी में बोलो। कैसे बोलो, कैसे बोलो? Because he so that's why. और कोई रीजन? और कोई रीजन? या दिशा कम कम आगे आओ, आगे आओ। किसी चीज की डर है? मेरे बाप से मुझे बड़ा डर लगता है। I'm really scared of my father, but apart from that I'm not scared. मैं पठानों का थोड़ा सा डर कम ही होता है पठानों में। तो बार-बार बोल रहा हूँ। Very nice, superb. All of them. 1, 2, 3. Love all of you. Thank एक मिनट। Well done. एक्सपीरियंस बताइए पहले तो बच्चों के साथ से। देखिए ज़्यादा तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे नौटिका का इवेंट है, नौटिका विंटर गलाटा। इट्स अ ग्रेट great event because sailing I'm actually very close to because I love water, and obviously when you love water you're not going to be away from sailing. There is a place I hope to buy one day where I can do my own, I can have my own, little, I can go for sailing with my friends. So that actually I would like to thank Nautica to actually get me, to get me here and bring close to what I love the most. So apart from obviously playing cricket. So it's good to be here, good to play with the, good to meet with the kids, and actually they were telling me some of the stories as well. I remember the one name for sure, that one guy actually who was number 2nd in this underprivileged, from the underprivileged group, and his name was Rajnikant from Hyderabad. So it was good to meet him and good to meet other kids as well. So they were really excited, and so am I. अभी डायरेक्ट आपकी क्वेश्चंस रहेंगे कि फिलहाल आपकी प्रैक्टिस का क्या कैसे करना है क्या है, और दिमाग में प्रोबेबल स्टडी के भी आने वाला है। देखिए बहुत सारी एम है, लेकिन वक्त के साथ obviously aim is still to play for country, but that's going to happen with the time, and I'm actually looking forward to do that. I'm doing my work very quietly, and hopefully that work's going to come in the picture pretty soon. देखिए बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जब मुझे पता चला, जब मैंने वो वीडियो देखा, तब मैं कांस्टेंट, जब से खबर मिली थी उसके बारे में, तब से कांस्टेंट मैं न्यूज़ चेक कर रहा था, कांस्टेंट पता कर रहा था क्या चल रहा है। एंड हम लोग सब उसके लिए प्रे कर रहे थे, पूरी दुनिया, मतलब जितने भी क्रिकेटिंग सर्कल में, उनके अलावा क्रिकेटिंग फैंस भी है, और जो लोग क्रिकेट नहीं भी देखते वो लोग भी काफ़ी उसके लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन I think he's in a better place now. It was a very unfortunate incident, and that day it's going to be remembered for a very long time. In terms of, we lost a soul where, he could have been great, one of the great, if not greatest cricketer. He was actually trying to figure it out his game as well when he came to play in subcontinent, and how he was trying to actually work on his game as well. So that was. And he was getting better as well, and that actually shows his character as well. He was a great character, he was with a great character, and I hope that his family is staying strong, and obviously with my thoughts are with the bowler as well. And because I remember in 2004 when I bowled a bouncer to Vermeulen, Zimbabwe batsman, he got hit on his head, and I was actually hoping and praying that his eye doesn't get damaged, and luckily his eyes were fine. And I can imagine what he's going through, the bowlers on Abbott, because I was actually shivering when my bouncer hit the batsman, and he was still alive and fine, and I really wish, and I just give my whole support to the bowler who actually hit him, because that's not his fault and that's not what he wanted to do that as well. लेकिन कोई सवाल है, ठीक है ये एक्सीडेंट था, आपने इसको हम इसको इस तरीके से कि अब, लेकिन ये बॉडी लाइन जो बॉलिंग होती है कई बार जानबूझ के भी होती है, हम देखते हैं क्रिकेटिंग उसमें, वहाँ पर उसको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें यहाँ से एक ICC को और रेस्पेक्टिव बोर्ड्स को यहाँ से कदम लेना चाहिए।
देखिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन इसमें है ऑलरेडी बिकॉज कोई भी बॉलर, मैं नहीं चाहता कि कोई भी दुनिया का अगर तेज़ बॉलर आप शोएब को भी पूछेंगे तो वो नहीं चाहता कि वो किसी को मारना चाहता है। वो चाहता है कि अगर वो बाउंसर डाले तो वो बैट्समैन उसका ध्यान सर पे हो और उसको एलबीडब्ल्यू या बोल्ड आउट कर दें। सो वो टैक्टिक्स रहती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जहाँ पे एक लिमिट के बाद आप कितना बचा सकते हो वो आपके हाथ में नहीं होता है। सो इस हादसे से लोगों को ज़रूर ये पता चला होगा कि क्रिकेट इतना आसान गेम भी नहीं है, बड़ा मुश्किल गेम है। यू नो देयर इज़ अ बॉडी ऑन द लाइन एज वेल। लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह आगे से ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो कि कोई बंदा अपनी लाइफ ना लूज़ करे। इस एक्सीडेंट के बाद फिर जो हेलमेट है उसको उसका जो बनावट जिस तरह की होती है, फाइबर यूज़ किया जाता है, बावजूद उसकी जो बनावट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हुए हैं। आपको लगता है इस कमी की ज़रूरत है इस तरह के इंसिडेंट के सामने? डेफिनेटली देखिए ना आप बेहतर होते जाएंगे। एक ज़माना था जब लोग बिना हेलमेट के खेलते थे, फिर हेलमेट आई, फिर हेलमेट में आगे वाइजर नहीं हुआ करता था, फिर बाद में और बेहतर हुआ, फिर हेलमेट सारी ऐसे आने लगी जहाँ पे बेहतर से बेहतर हेलमेट लोग बनाने लगे। मुझे भी एक बार माइकल कास्परोविच का बॉल लगा था हेलमेट पे, मैंने हेलमेट पहनी थी, मुझे सर पे बॉल लगा बैंगलोर टेस्ट मैच में, लेकिन आई वाज ऐसी जगह पे लगा था जहाँ पे हेलमेट में सीधा ऊपर लगा। सो आई वाज एक्चुअली फाइन। सो कौन सी जगह पे लगता है वो भी बड़ा डिपेंड करता है, लेकिन जितनी ज़्यादा सेफ्टी के साथ गेम आगे बढ़ेगी उतना ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आपकी जो आज ये होने वाली है, ये जो अभी कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि आप क्रिकेटिंग फील्ड से आते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो लेकिन हमने सर्फिंग करते हुए आपको कई बार आप जो फॉरेन टूर्स वेस्ट इंडीज़ में आपने मुझे ज़रूर देखा होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी सब जगह पानी ही पानी है, तो वहाँ पे मैं ज़रूर सर्फिंग करने जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। इतना तो ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ मैं, होपफुली ये बच्चों के साथ मैं कुछ सीख जाऊँ। लेकिन नॉटिका को मैं ज़रूर थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज वो एक बहुत बड़ा इवेंट उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, नॉटिका विंटर गलाटा, जिसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए